Now, as probe gains momentum in actor Saif Ali Khan's stabbing case, Mumbai police sources have revealed that a total of 19 samples of fingerprints of the suspect from Saif Ali Khan's residence have been sent to the CID, and no on-record confirmation on the fingerprint mismatch has in fact been found, as the cops are now waiting for the final report. Now, we have been keeping an eye on this investigation of Saif Ali Khan stabbing case. Now, let's take our viewers point by point on what all are the factors that we consider are not really adding up as far as this trail of investigation is concerned. Why is something amiss here? Let's take a look at number one. 12 days after the fingerprints have been collected and the final report is still pending. Why is that? There is a serious question mark on this. Also, CCTV doesn't match with the arrested individual. In fact, this is something that the accused father has also come on record and said that the person who was caught on camera on the CCTV is not his son, and his visual is completely different from what his son's is. Now, the accused's blood samples have been sent for DNA and the forensic reports are still pending. All of this has happened right after the arrest of the accused, and the final report has not yet come. The possibility of two men being involved is also there, and this probe is currently underway. So all of that aspects are also something that are not really coming out, even though they are getting having a person who's the accused, who's been arrested, as one individual who possibly somehow entered Saif's residence, managed to stay holed up in the garden somewhere without being caught there on CCTV, and then get out of the apartment. All of these things are still being looked at, and there are serious holes and loopholes in this investigation. Let me take this across to my colleague Vivek Gupta, who has been at the forefront of this entire case once this entire stabbing incident really broke, and we were in fact taking a look at this particular case. But Vivek, इस बात की जानकारी हमें दीजिए. अब फोरेंसिक टीम एक फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं सामने लेके आई है, जबकि ये फिंगरप्रिंट्स और 19 फिंगरप्रिंट्स हमें बताया जा रहा है ये कलेक्ट हो गए थे सैफ अली खान के रेसिडेंस से. तो ये डीले किस बात का है? गृह देखिए, इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेज हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 19 सैंपल नहीं बल्कि इससे ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो सैफ अली खान के घर से कलेक्ट किए गए हैं. प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी उसमें कुछ सैंपल मैच कर गए थे. बीच में एक काफी ज्यादा खबरें उड़ी कि सैंपल मैच नहीं हुए हैं. उस पर मुंबई पुलिस ने पूरे क्लैरिफिकेशन भी दिए हैं. उनके साफ तौर पर कहा है कि फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो 10 से 12 दिनों में आती हैं. इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और पुलिस सोर्सेज के मुताबिक 1 से 2 दिन में फिंगरप्रिंट की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी. अब देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो खबरें चलाई जा रही है, जो खबरें चल रही है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए हैं और उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है, और जो एक्यूज है वो बिल्कुल ऑथेंटिक एक्यूज है, और जो और भी सच्चाई इस पूरे मामले में सामने आएंगी तो जल्द से जल्द पुलिस खुलासा करेगी. लेकिन सीएम ने भी साफ तौर पर कहा कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है. फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक उस पर कमिट करना कुछ भी सही नहीं है. राइट. विवेक, अभी मुंबई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के तौर पे और क्या जानकारी सामने आ रही है? सीआईडी को ये भेजी गई है. इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि 2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. कितना सच है इसमें? देखिए, अगर हम प्रोसेस की बात करें कि जब भी मुंबई और आसपास में कोई भी क्राइम होते हैं, उसके फिंगरप्रिंट जो सैंपल होते हैं वो स्टेट सीआईडी के पास ही फिंगरप्रिंट्स जो टेस्ट होते हैं उसी के लिए जाते हैं. तो केस अभी सीआईडी के पास ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि फिंगरप्रिंट की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो स्टेट सीआईडी करती है. इसलिए इस मामले में भी फिंगरप्रिंट के सैंपल्स हैं वो स्टेट सीआईडी के पास गए. अब स्टेट सीआईडी ही, उनकी जो टीम है फॉरेंसिक की, वो पूरी डिटेल रिपोर्ट अभी इसमें बना के देगी कि जो सैफ अली खान के फ्लैट से जो सैंपल्स मिले हैं फिंगरप्रिंट्स के, और जो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं उसके फिंगरप्रिंट के सैंपल मैच करते हैं नहीं करते हैं. तो स्टेट सीआईडी माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ये फाइनल रिपोर्ट से मुंबई पुलिस के जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको पूरी रिपोर्ट सौंपेगी. जहां आपने दूसरा सवाल पूछा, उस पर साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि अभी तक जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में लग रहे हैं कि एक ही इसमें एक्यूज है जिसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. 2 बार उसकी रिमांड ली जा चुकी है. तीसरी रिमांड 29 तारीख की
19 यानी कि 29 जैन, उस पर पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि इस रिमांड में कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है कि एक्यूज के जो ब्लड सैंपल्स हैं, उसके जो कपड़े थे, जो नाइफ है, वो सब पार्ट्स उन्होंने इकट्ठा कर दिए हैं। एक्यूज का डीएनए सैंपल भी लिया गया है कि अब ये एक्यूज जो है वो मेन एक्यूज है या नहीं, डीएनए रिपोर्ट भी आना बाकी है। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक वाटर टाइट केस इसके ऊपर बनाया जा रहा है। जितने भी टेक्निकल एविडेंस है और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उन सबको कलेक्ट किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी 2 से 5 दिन में आ जाएगी, तो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो क्वेश्चंस मुंबई पुलिस पे लगातार उठ रहे हैं वो रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। Right, Vivek, thank you so much for all of that information. In fact, my colleague Vivek had also spoke with Dr. Rukmani Krishnamurthy, who's the ex-director of FSL in Mumbai. Let's take a look at that conversation. FRT फेस टू फेस का प्रोसेस क्या होता है और कितना ऑथेंटिक होता है ये प्रोसेस? फिलहाल ये जो हेलिक एडवाइजरी है ये प्राइवेट है पर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएफएसयू। यहाँ पर मैंने जो लेबॉर्ट्री में चलाया था वैसे ही टाइप की केसेस करती हूँ विद स्टैंडर्ड अप्रूव्ड मेथड्स, और फोरेंसिक की जो एनालिसिस होती है वो ऐसे जस्ट देखकर करने की नहीं होती है। हर कोई जानता है हर फील्ड में एक एथिक्स होती है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, और उसको फॉलो कर कर इसके पहले भी हम फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में बहुत से सीरियस केसेस की हैं, मर्डर केसेस की हैं, जहाँ पर फेशियल रिकग्निशन, स्कल सुपर इम्पोजिशन, सीना बोरा का केस सुना होगा आपने, स्कल सुपर इम्पोजिशन से पूरा एनाटॉमिकल फ्रंटल पॉइंट से कंपेयर कर ये सबका टेक्निक एक ही होता है। इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर आदमी का हेयरलाइन, फोरहेड, आईब्रो, आईज, आई सॉकेट, नोज, नोजल बोन्स, लिप्स, चीज, जार शेप, ये पूरा कॉम्बिनेशन की जो है उसका डिजिटली एनालिसिस होता है।